Hey there, I'm basically here to demonstrate the COMSIL simulation of how I went about the COMSIL project of my men's course by Emma Risman. There are two main simulations questions which we had to demonstrate. In question number one, we had to go about demonstrating this geometry and then applying the thin film stress test. इसके ऊपर यहाँ पे I started off with a geometry, a 2D asymmetric cross structure using union of rectangles. This is the basic geometry which we had to end up working with. And then after that, I had basically assigned polysilicon and then had set the physics to plane stress. I had added this initial stress node. This is visualizable कि मैंने उसमें basic क्या metrics value set किए. This is basically applying of 100 megapascal biaxial tensile strength because this accurately represents the physical residual stress trapped in the thin film after the deposition, right? And then on the boundary conditions, I had set some fixed constraints. These are basically the one is the top part and the top part of the top vertical beam and then the bottom part of the bottom vertical beam. As you can see, ये वाला part है. I only had fixed these two edges because it mimics how the actual test structure is physically anchored to the substrate, leaving the rest of the body suspended and free to deform. बाकी जो horizontal beam है, the anchor beams, they are all free to deform. उसके बाद I had basically generated a simple mesh. यहाँ पे before computing, I had used extra fine basically a mesh, but I had also added a custom size node to heavenly refine it down as यहाँ पे you can visualize. Over here, I had set the maximum element size to 0.5 micrometer specifically at the anchor beams के खाली anchor beams के लिए. I did this because those thin regions have like high stress concentrations and they require smaller elements for accurate reading. इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होने के बाद जो I had basically evaluated the study. I'll recompute it यहाँ पे. राइट, तो इसके बाद हमारे पास ये सिंपल एक स्ट्रेस का ग्राफ आता है टू सिमुलेट द मैग्नीट्यूड का ग्राफ. आई जस्ट हैव टू चेंज दिस. solid dot disk. यहाँ पे यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज द मैग्नीट्यूड ग्राफ विद द सो कॉल्ड डिफॉर्मेशन जो कि हमारी स्पेसिफाइड थी विच वाज ऑब्वियस आफ्टर. और यहाँ पे आई ऑल्सो रन द टेबल अलॉन्ग साइड फ्रॉम द स्टार्ट. यहाँ पे हमारे पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो थ्रू द ग्राफ्स. यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ग्राफ है एंड देन द सेकंड वाज द स्ट्रेस का ग्राफ. आई प्लॉट इट ओवर हियर. ओके, यहाँ पे लाइक मिनिमम स्ट्रेस है अलोंग द कॉर्नर्स एंड देन द मैक्स स्ट्रेस यहाँ पे. एज यू कैन विजुअलाइज स्ट्रेस का कलर्स आर समवट विजिबल ऑन द एंकर बीम्स. I'll go through the derived values. यहाँ पे I had used basically point evaluation on the corner point of the horizontal beam. उसकी displacement measure करने के लिए I had selected this one point and then upon the evaluation I'll show you. These are basically एक displacement magnitude x component in the y component. यहाँ पे after computing the displacement plot basically showed a deflection of about 2.62 micrometer at the horizontal beam end. This makes completely sense physically because the free ends are being pulled outwards to relieve the trapped tensile stress. और फिर हमारे पास जो नॉन विसिस की वैल्यूएशन है यहाँ पे आई हैड सेलेक्टेड both the क्या नाम है anchor beams. Number 3 is this the top one and then the number 5 is the bottom one. Upon the evaluation, this was the output which I was getting for the stress value.
So this occurs because they are mainly structural bottlenecks, of course, resisting like a massive expansion of forces of the larger beam जिसके top और bottom पर है, जो कि fixed है. Okay. Next, I'll go through the question number two. इसमें we had basically two cantilevers simulated. अच्छा, यहाँ पे how I exactly went about this, I'll start off with geometry at first. I had two basic cantilevers, cantilever A and then the cantilever B. The bottom one is cantilever A actually, and the top one is cantilever B. Cantilever A is much narrower. इसकी जो क्योंकि width है which was specified was 10 micrometer, और cantilever B की width was 1000 micrometer उसके हिसाब से, and then इसकी जो दोनों की depth है, I'll show you. Depth is roughly 10 micrometer. Okay. अच्छा, अब on the boundary conditions, these are the fixed constraints set for both the cantilevers. The top one is the cantilever B again, and the bottom is cantilever A. इन दोनों के जो x इक्वल टू जीरो के एक्सिस है, x इक्वल टू जीरो का जो फेस है उसको मैंने फिक्स कर दिया था. दिस डायरेक्टली मिमिक्स अपना क्या स्टैंडर्ड मैकेनिक्स सेटअप फॉर द कैंटिलीवर का बेंडिंग टेस्ट, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है, विच आई बी अगेन डिफाइनिंग के मैंने लोड क्या सेट किया है. अब नेक्स्ट आई हैड बेसिकली सेट अ डेफिनेशन, क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट फेसेस थे और शैल से डिफरेंट यूनिट पॉइंट्स थे. 100 और 110 के डिफरेंट पॉइंट्स का हमने टेस्ट लेने थे. तो टू सिमुलेट द 110 का हमारा फ्रेम, आई हैड मेड दिस रोटेटेड सिस्टम. आई हैड एडेड दिस अंडर द डेफिनेशन पार्ट. बेसिकली अपना जी एक्स जी रोटेशन और इसकी बेसिकली जी एक्सिस के अलॉन्ग जो रेडियंस में दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री. इस तरीके से हमारे पास वो 45 डिग्री पे सिमुलेट हो रहा है, वो हमारे पास 110 फ्लेम के अंदर सिमुलेट होता है. एंड देन आई हैड एडेड दिस अंडर द लीनियर इलास्टिक मटेरियल. यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, दीज आर बेसिकली ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्रिस्टल फ्रेम है. अच्छा, बिफोर वी डाइव इनटू व्हिच वन टू सेलेक्ट फॉर व्हिच पार्ट, वी हैड बेसिकली टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में हमारे पास 110 की डायरेक्शन निकालनी थी, पार्ट बी में 100 की. जो हमारा बिल्ट इन सिलिकॉन मटेरियल है, बाय डिफॉल्ट इट बेसिकली बाय डिफॉल्ट हैज अ फेस स्ट्रक्चर ऑफ 100. I had also simulated this in my report. I'll show you this part. हमारे पास जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, अब 100 क्यों है. अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास ये एक्सिस है, मैट्रिक्स है एक, जो कि सिमुलेट कर रहा है कि इसकी इलास्टिसिटी मैट्रिक्स क्या होगी. एंड ऑफ कोर्स जो मटेरियल एसिमेट्री वो एनिसोट्रॉपिक है हमारी, क्योंकि सिलिकॉन एनिसोट्रॉपिक के हम ऊपर हम कर रहे हैं. आई विल शो यू एग्जैक्टली ये कहाँ पर. ये यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो मटेरियल है उससे हमारे पास मिल रहा है, एक्सटेंड करें तो ये चीज़ हमें मिलती है उससे. ये बेसिकली एक सिमुलेटेड मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास सिमुलेट हो रही है. और ये जो बेसिकली मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास 100 फेस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है. बेसिकली सर्च दिस ऑन गूगल एज वेल, गूगल से भी रेफर करने पे आई हैड गॉटन दिस के जो हमारे पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड होता है 100 की एक्सेस की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो ये है मैट्रिक्स. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग यूज्ड हमारे स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट. तो इस वजह से हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो 100 है. सो फॉर पार्ट ए जहाँ पे हमारे पास 110 का पूछा है, पार्ट ए में 110 का, तो यहाँ पे वील हैव टू गो थ्रू द 45 डिग्री जी एक्सिस के अलॉन्ग डिफ्लेक्शन, जिसके लिए हमारे पास ये वाली चीज़ डिज़ाइन की गई है, दिस क्रिस्टल फ्रेम. अब दिस इज अगेन 45 डिग्री का, एंड यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है विच इज़ डिफाइंड ओवर हेयर. कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सी यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर पार्ट ए.
I'll again run the study, and before running the study I'll also define कि बेसिक मैश का स्ट्रक्चर क्या था. मैश के स्ट्रक्चर में आई हैड जस्ट जनरेटेड फ्री tetrahedral and had set the mesh to extra fine. यहाँ पे this is perfectly sufficient because these are simply continuous blocks without any sharp complex stress concentration points in my opinion. ठीक, and then upon the generated study, again this is for part A. This is the mesh structure by the way. I'm running the study as of now. And yeah, I forgot about one part. I'll also demonstrate that जब ये study पूरी हो जाए. अच्छा, यहाँ पे इन द रिपोर्ट हमारे पास एक मेंशन थी कि दिस फोर्स बाय विथ हमारे पास 0.3 न्यूटन पर मीटर का उस पर टिप लोड पड़ रहा है. तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट लोड सेट किए थे. फॉर कैंटिलीवर ए लोड ए सेट किया हुआ है. वहाँ पे टोटल फोर्स वाज डिफाइंड अलोंग जी एक्सिस, जो कि फोर्स अपॉन विथ की जो से जो हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू निकलती है इसकी, दैट इज -3 × 10⁻⁻6 हमारे पास टिप ए के लिए. दिस इज फॉर फेस ए. आई विल शो यू अगेन एग्जैक्टली. ये फेस ए के लिए है. फॉर लोड ए हमारे पास ये है अपनी स्पेसिफाइड फोर्स की वैल्यू. एंड फॉर लोड बी हमारे पास ये वाला फेस स्ट्रक्चर यूज़ किया गया और इसकी स्पेसिफाइड जो फोर्स थी दैट वाज e की पावर -3 × 10⁻⁻4, राइट. उसके बाद जो हमारे पास स्टडी से स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हैं उसका अगेन फर्स्ट आई विल शो यू द स्ट्रेस प्लॉट. वो इस तरीके से जनरेट हुआ था हमारा. और फिर उसकी स्पेसिफाइड जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी कि हमारे पास जो टिप डिफ्लेक्शन है वो कितनी आ रही है. फॉर पार्ट ए हमारे पास बेसिकली पार्ट ए और बी के लिए हमने पॉइंट एवेल्यूएशन ही यूज़ किया था. अपना जो पॉइंट एवेल्यूएशन हमने यूज़ किया था वो हमारे पास टिप लोड की तरफ से, बिकॉज वहाँ से हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया था टिप लोड. फॉर एग्जाम्पल फॉर पॉइंट बी आई हैड सेलेक्टेड दिस टॉप वन, एंड देन फॉर पार्ट ए सॉरी फॉर कैंटिलीवर ए आई हैड सेलेक्टेड दिस पॉइंट. ओके, एंड देन इस पे जो पॉइंट एवेल्यूट करने के बाद जो हमारी फॉर कैंटिलीवर ए वैल्यू आ रही थी वो फर्स्ट आई डिलीट दिस एंड रन अगेन. ए के लिए हमारे पास ये स्पेसिफिक वैल्यू आ रही थी अगेन फॉर 110, क्योंकि हमने इसमें अगेन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो 110 कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया. और फिर कैंटिलीवर भी हमारे पास जो पॉइंट एवेल्यूएशन की वैल्यू आ रही थी माइनस दिस इज मतलब 0.786 माइक्रोमीटर डिस्प्लेसमेंट इसकी अकर हो रही है अपॉन अप्लाइंग द फोर्स. और हमारे पास दूसरा फॉर पार्ट बी हमारे पास 110 की डायरेक्शन पे सिंप्लीफाई करना था. तो इसमें हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है विच इज़ कहाँ पर है, ये जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वही यूज़ करेंगे. बिकॉज अगेन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टडी का सिलिकॉन मटेरियल है दैट इज़ सेट टू 110 की फ्रेम. तो इसलिए हमारे पास जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास 100 के ऊपर है. एंड अगेन ये हमारे पास बाकी सिमुलेटेड मैट्रिक्स वगैरह सारे सेम होंगे. This is all, and then again the mesh structure, all of them are the same. Upon regenerating the study, again the stress plot is of course the same. बाकी जो पॉइंट एवेल्यूएशन से जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं आई डिलीट दीज. जो अब हमारे पास 100 है, राइट. यहाँ पे एवेल्यूएट करने के बाद हमारे पास जो कैंटिलीवर ए की जो वैल्यू आ रही है डिस्प्लेसमेंट की दैट इज़ 1.15 माइक्रोमीटर डिस्प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और बी के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है
that is 1.04 micrometer. I'm sorry. So this is how exactly, I mean, basically learned about the simulation for the required questions. Thank you.